discovery, invention, finding out, and one thing is excavation. Like Mohenjo-daro and Harappa. Okay, Mohenjo-daro and Harappa, Lothal, Kalibanga, Ropar, Dholavira, Daimabad, Surkotada, Rakhigadi, Daimabad. There are many cities, many places. And one more important thing is there. The period of Indus Valley civilization is Kavya. 2500 BC to 1750 BC. Very good. And even more broadly we can say 3000 BC to 1700 BC. This is the entire period. And categorically whatever you are saying 2500 BC to 750 BC, this is specific and categorically correct. Sit down. Indus Valley civilization is famous for one important characteristics. What is that? What for like it is important and it is famous, and we give example again and again, and it is different from the other perspective also. What type of civilization it was? Okay, try. Indus Valley civilization to world in flow first cotton. Cotton, grains, all those things are there. But you know, till date, India is a country of villages. भारत को गांवों का देश कहते हैं कि नहीं? तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, इट वाज ए सिविलाइजेशन ऑफ सिटीज, अर्बन सिविलाइजेशन थी, गांव नहीं थे. सिंधु नदी के, इंडस रिवर के साइड में, या जहां तक इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स चलती थी, आदमी पहले कहाँ सेट होता था, कहाँ घर बनाता था, कबीले कहाँ बस जाया करते थे, जहाँ पे उनको खेत मैदान खेती के लिए उपलब्ध होते थे, पानी उपलब्ध होता था, अच्छे चारागाह उपलब्ध होते थे, और उनकी अपना कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं जहाँ पर वो उपलब्ध हो सके, खरीद सके, बेच सके. तो ऑल दीज वाटर सोर्सेज लाइक बिग clean water reservoirs like lake, rivers, there people used to settle down, and Indus Valley people settled down around the tributaries of Indus and in the entire valley. So this is the one of the important, and I believe it is the first urban civilization. नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण की बजाय नगरीय सभ्यता थी. उसके बाद में आर्य आते हैं. आर्य नोमैड्स थे, पास्टोरल्स उनका बड़ा काम था, पशुओं को रखना, पालना, और गायें उनका मुख्य मतलब चीज़ थी. ठीक है, तो वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो शहरी सभ्यता थी. ओके, व्हाट टाइप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज देयर? इफ समवन आस्क्स यू इन द वन वर्ड, व्हाट टाइप ऑफ सिविलाइजेशन वाज देयर? Urban civilization. से ऑल ऑफ यू लाउडली. What do you mean by urban? So cities. Cities, towns. Yes. आज के चाहे मेट्रो हो और चाहे मेट्रोपॉलिटन नहीं, मिडिल क्लास की सिटी हो, तो एक शहर, शहरीय सभ्यता थी. समझे? And so villages like a rural civilization. रूरल एग्रीकल्चर वगैरह होती थी, पशुओं को पालते थे, वो सब काम होते थे, लेकिन इनका जो सेटलमेंट का रहने की जो जगह थी ना, वो एंटायरली इट यूज्ड टू बी सिटीज. ठीक है, बैठो. और इनकी सिटीज़ की, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिटीज़ थी, इंडस वैली सेटलमेंट की जो सिटीज़ थी ना, उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी? बहुत ही अच्छे, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से इन शहरों को बसाया गया था. और वी कैन कंपेयर दी सिटीज़ ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा विथ द मॉडर्न सिटीज़ ऑफ चंडीगढ़ एंड जयपुर. Have you anyone seen the Chandigarh or Jaipur? Yes, How many people are there who visited Jaipur? What is the specific and special in the Jaipur? No, all those are monuments, historical cities. But from the city point of view, the important thing is these towns are, these pink cities there. All these questions are there. All these informations are from the general knowledge point of view are correct.
But the main important thing I would like to emphasize is that these cities are built in a very planned manner. Roads are straight, and the street and road cross each other at a very right angle. सीधी बड़ी और चौड़ी सड़कें हैं जयपुर वगैरह में, चंडीगढ़ में। आज शहर देखते हैं ना, जहाँ के चौराहे बिल्कुल सीधी रोड जा रही है, सीधी गली जा रही है, फिर चौड़ी है। तो ये सेम चीजें मोहनजोदड़ो में थी आज से कितने साल पहले, 4-5 years back, 3000 BC, and we are now in the 2022 AD. So this was the civilization, these were the cities around 4 to 5 years back. हाइजेनिक थी, और पूरा उसमें ड्रेनेज का सिस्टम भी अच्छा था। ड्रेनेज जानते हो, जो घर से अपने बाहर पानी निकलता है, नहाने धोने का, साफ सफाई का, टॉयलेट्स का, जिसे आज अपन सीवरेज लाइन वगैरह बोलते हैं, तो उस टाइम में उनके प्रॉपर थी। कितने साल पहले? 3000 BC, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5000 years बैक। 5020 years back। बिल्कुल इतना, और इतना अच्छा उनका शहरों का तरीका था। आज अपने शहर हैं ओवर पॉपुलेटेड हैं, गंदगी पड़ी रहती है, और गवर्नमेंट, मोदी सरकार, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन सिटी, क्लीन गंगा, so many drives are going on, and we are spending huge amount to maintain all these cities clean and for where the people can live with the good health। दिल्ली वगैरह में पोल्यूशन है, कितनी सारी चीजें हैं, खराबियां हैं, लेकिन उन शहरों में उस समय भी नहीं थी। So this is the important thing, this is the main important thing। But Mohenjo-daro not have technology। Okay, technology advancement was not there that we can compare, but in that period, that characteristic is very important. Cities were neat and clean, hygienic city, and all their buildings were constructed with baked bricks। ईंटें थी बेटा, पकी हुई ईंटें। ईंटों को कैसे पकाते थे? आग में, ठीक है। ब्रिक लेन वर देयर, एंड कुछ जगह पे सन बेक्ड भी थी। गारा और जो मेशन वगैरह होता है ना, मोर्टार वगैरह, उसे ईंट बना दी, फिर भट्टे में सुखा दिया, और अदरवाइज धूप में भी सुखा दिया। तो ऐसे करके उनके घर बने हुए थे, ठीक है। और सिटी है ना, हर एक सिटी लगभग, खास करके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। वेस्टर्न पार्ट था ना, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑल दीज सिटीज यूज्ड टू बी ऑन ए हाई ग्राउंड। देयर बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई ग्राउंड। सो वी कैन इमेजिन all those high ground buildings used to be the buildings of the some upper class community. Classes were not there, I don't know classes were there or not, but important people like rulers, like some of the people from the upper segment of the society, और उनको ये था कि उसके चारों तरफ it used to be protected with the wall also, western part, and उसी वेस्टर्न पार्ट में जैसे मोहनजोदड़ो में इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी। एक तो ग्रेनरीज थी, मतलब हो सकता है उधर बार बार बाढ़ आती होगी, बार बार इनका जो सामान है, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, खराब होने के कोई चांसेस रहे होंगे। तो ये क्या, मतलब थोड़ा ज़मीन के मतलब ऊंचा करते थे, ऊपर उठी हुई ज़मीन पे इन्होंने बिल्डिंगें बनाई थी, और वहीं पे इन्होंने अन्नागार बनाया था, भंडार, मतलब जहाँ पे ग्रेन्स रखते थे, मेज, बेयरली, ऑल दीज फूड ग्रेन्स दे यूज टू स्टोर। ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग उनकी थी ग्रेट बाथ, ठीक है। घर में तो उनके बाथरूम और स्नानागार थे, लेकिन उसके अलावा भी एक जगह बहुत बड़ा बाथरूम था, द ह्यूज बाथरूम वाज देयर। और उसका पर्पज रहा होगा कि सब लोग कोई ना कोई कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व होते होंगे, जैसे कुछ काम किया हो या कोई फंक्शन रहा हो और कोई पूजा पाठ करनी होगी, तो उससे पहले आज भी है ना अच्छी तरह से, जैसे कहीं स्नान करते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं या कुछ फंक्शन अटेंड करते हैं, तो हो सकता है ऐसी कंडीशन उस ज़माने में भी रही हो, और सब लोग वहाँ पे, मतलब सारे शहर के या पार्ट ऑफ द शहर पीपल यूज टू टेक बाथ।
तो उस जो बिल्डिंग है ना बेटा, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस मोहनजोदड़ो, तो उसको जब ये एक्सकेवेटर थे और जिन्होंने खोदा देखा ना, तो जॉन मार्शल है, उसने इस बिल्डिंग को देख के, उस बिल्डिंग का रेमेनेंस को देख के, मतलब जो अभी बचे खुचे भाग है उसको देख के, और जैसे कहा था ना कि संसार के ये अपने पिसा की झुकती हुई मीनार, ताजमहल और ये सारे हैं कि नहीं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, है ना, तो उसने ऐसे कह दिया था कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वंडर्स ऑफ बिल्डर्स, कंस्ट्रक्ट करने वालों ने जो बिल्डिंग बनाई है ना, उनमें से ये बिल्डिंग का भी एक अजूबा है। जॉन मार्शल ने कहा था इस जगह को देख के, किसको देख के, ग्रेट बाथ को देख के, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, ठीक है। What is the important animal? Important animal. I am coming to the point. That was the bull. And bull. Horse was not so important, because why we can say the bull was the important animal? Because Indus Valley people used to have trade and business with the other cultures of the world, Mesopotamia, etc. So we found seals, stamps, आज भी कई जगह पे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की या सपोज पोस्ट ऑफिस की है, और जैसे स्कूल का एग्जांपल देते हैं तो प्रिंसिपल की एक सील होती है ना, मोहर होती है ना, देखी है सबने, तो ऐसी सील्स, स्टैम्प्स वहां पर मिले, और उस स्टैम्प पे पिक्चर्स होती थी, पिक्टोग्राफ। सील से अपने सील लगाते हैं तो उसमें क्या है, नेशनल एम्बलम, कोई बहुत सारी सील लगाते हैं तो नेशनल एम्बलम होता है कि नहीं होता है उसके अंदर, उसमें होते थे, ठीक है। बिल जो 1 हॉर्न राइनोसोर भी नहीं था, लेकिन वो बुल को उसको मानते हैं। और किसी जगह पे गोडेज है, मदर गोडेज की है, किसी जगह पे फिश की भी है, तो ऐसी खूब सारी मोहरें मिली है, टेराकोटा की बनी हुई है, टाइप ऑफ मिट्टी है टेराकोटा, उससे बनी हुई सील्स थी। उसका मतलब उसे अपन ये क्लू निकालते हैं कि उनका बिजनेस था। और कोई भी सामान, जैसे आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप मंगाते हो ना, पूरा पैक करा हुआ, ऊपर मोहरें लगी हुई, सील छपे लगे होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये भी कुछ अपना सामान वहां बेचते होंगे, वहां से कुछ यहाँ आता होगा, तो उसमें बिल्कुल सील वगैरह लगी रहती थी, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, सील्स। और उन सील्स के थ्रू अपने किस चीज का पता चलता है, दे हैड रिलेशन विद द फार अवे कंट्रीज, अंडरस्टूड। और अपन कोई भी आज व्यापार व्यवसाय ट्रेड वगैरह कैसे करते हैं, वी नीड सम ट्रांसपोर्टेशन, वी नीड सम एयरपोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स। तो इन दैट टाइम लोथल वाज द डॉकयार्ड, बंदरगाह था लोथल गुजरात में, ठीक है। वहां से समुद्र के रास्ते वो माल भेजते होंगे, और डॉकयार्ड वाज वेल डेवलप्ड, शिप आ सकते थे, शिप की लदान होती थी, शिप में माल भरा जाता था, कंसाइनमेंट यूज्ड टू बी लोडेड ऑन दी ऑल दोज शिप, and all those stuff used to be exported and transported to the faraway countries. So they are used with the other countries. Yes. और नेक्स्ट क्यूरियोसिटी होगी, आज अपन लिख रहे हैं, कंप्यूटर है, हाथ से भी लिखते हैं, प्रिंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इंडस वैली पीपल की भी स्क्रिप्ट थी, उनकी भी लेखनी थी कुछ न कुछ। बट एक बड़ी बात यह है कि दैट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड येट। उनकी जो लिपि थी, स्क्रिप्ट थी ना, वो अभी पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। और एक बड़ा अनुमान है दैट यूज्ड टू बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हिंदी कैसे लिखते हो आप, जैसे सपोज ये बोर्ड है या पेज है, तो अपन इस हाथ से शुरू करते हैं, लेफ्ट टू राइट, इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं, मैनी ऑफ द लैंग्वेजेस और मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस वी राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट स्क्रिप्ट ऑफ इंडस पीपल वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उर्दू और पर्शियन मे बी सेम वे, बट usually a question is put in exam, that is mainly what are the things correct about the script of Indus Valley people. So first they will put it was a pictorial, it was written from right to left, it is not deciphered yet,
नन ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो तीनों ही बातें सही है, सही है कि नहीं भाई? अभी इंडस वैली पीपल की जो लैंग्वेज थी अभी तक तो पढ़ी नहीं गई है, राइट टू लेफ्ट भी लिखी जाती थी और उसमें चिन्ह थे, चित्र थे, ठीक है, अल्फाबेट और लेटर